دعا کے ساتھ چلتی ہے. اور آپ سفر کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, میں بھی سفر کرتا ہوں. آپ بتاؤ ہم رات کو سفر کریں, توجہ کریں, ہم آپ توجہ کریں. جب ہم سفر کرتے ہیں, بیٹا سفر میں ہے, بیٹا سفر میں ہے. اب بیٹا سفر کر رہا ہے, توجہ میری طرف کریں, بیٹا سفر کر رہا ہے. اب بیٹا جب سفر کر رہا ہے تو بیٹے کا کام ہے جاگنا, اس لیے کہ سفر میں سو نہیں سکتا. بیٹا جاگتا ہے, سفر کرتا رہتا ہے, لیکن ماں بستر پہ لیٹی ہے, سونے کے لیے لیٹی ہے. اگر بیٹا سفر میں ہے تو ماں کو نیند نہیں آتی, بیٹا سفر میں ہے تو ماں کو قرار نہیں آتا. بیٹا سفر میں ہے تو ماں بستر پر بے چین رہتی ہے. یہ محبتیں تیرے ساتھ تیری ماں کی ہیں, یہ محبتیں تیرے ساتھ تیرے باپ کی ہیں, لیکن ہم نے اس کا صلہ کہہ دیا. جب ہم بول نہیں سکتے تھے اس وقت ہمارے ماں باپ نے ہمارے علاج کے لیے کتنی قربانیاں دی, لیکن جب یہی ماں باپ بڑھاپے کی منزل پہ قدم رکھتے ہیں تو اولاد کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ ہر اولاد کو اپنے سلیم عطا فرمائے. ماں باپ کے مرتبے کو ہم نے جانا نہیں, ماں باپ کی شان کو ہم نے پرکھا نہیں. ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ باپ بوڑھا ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, تو بوڑھے ماں باپ کے لیے ہماری جیب سے 100 کا نوٹ نہیں نکلتا, ہم 100 روپے دینے کی طاقت نہیں رکھتے. دوستوں احباب کے ساتھ ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں آتا, ہنستے رہتے ہیں. دوستوں میں نہیں اڑائیں گے تو کہاں اڑائیں گے؟ ماں کے لیے 100 کا نوٹ نہیں نکلتا, باپ کے لیے 100 روپے نہیں نکلتے جیب سے. ارے یہ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ تیرا نہیں ہے, پیسہ تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. نبی کریم نے فرمایا سب تیرے باپ کا ہے. ماں باپ کے لیے تمہاری جیب سے پیسے نہیں نکلتے. ہم نے ماں باپ کو سمجھا کیا؟ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کی شان کو پڑھا نہیں, ہم نے ماں باپ کے مرتبے کو جانا نہیں. اگر ہم ماں باپ کے مرتبے کو جان لیتے, ماں باپ کی شان کو پڑھ لیتے, تو کبھی اپنے ماں باپ کو ایذا نہیں دیتے, کبھی اپنے ماں باپ کو ستاتے نہیں. ماں باپ کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سائل آیا, عرض کرنے لگا, حضور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیسی ہے؟ آج تم پریشان ہوتے ہو, ہم پریشان ہوتے ہیں. انسان کسی کا مرید ہے تو اپنے پیر کے پاس جاتا ہے, کبھی مسجد کے امام کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی کے پاس جاتا ہے, میرے لیے دعا کر دیں, میں پریشان ہوں, میرے لیے دعا کر دیں. اور گھر میں ماں باپ بیٹھے, ماں سے کبھی نہیں کہتا میرے لیے دعا کر دیں, ماں سے کبھی استغاثہ نہیں کرتا ماں کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں. پیر کے پاس جائے گا میرے لیے دعا کر دیں, اللہ والوں کے مزار پہ جائے گا اپنی پریشانی لے کر, اپنی فریاد لے کر, میری پریشانی دور ہو جائے. اے میرے بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سائل آیا, عرض کرنے لگا, حضور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیسی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماں باپ کی دعا جاننا چاہتا ہے, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیسی ہے؟ تو سن, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسی مجھ محمد کی دعا اپنی امت کے حق میں, جیسی نبی کی دعا امت کے حق میں. تو پتہ کیا چلا, کسی پیر, کسی عالم, کسی ولی کی دعا میں وہ اثر نہیں جو اللہ نے تیرے ماں باپ کی دعا میں رکھا. ماں باپ کی دعا میں جو اللہ نے اثر رکھا ہے, کسی کی دعا میں وہ اثر نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی پریشانی آئے, ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ اور ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر دے, باپ سے کہو باپ میرے لیے دعا کر دے. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دل کو اتنی ٹھنڈک پہنچا دو, ماں باپ کو اپنی زندگی میں اتنا آرام دے دو, اتنا سکون دے دو, تیرا کوئی بھی قدم بعد میں اٹھے, تیری ماں کا آنچل تیرے حق میں دعا کے لیے پہلے اٹھ جائے, تیری ماں کا آنچل تیرے لیے دعا کے حق میں پہلے اٹھ جائے. جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے, ابھی آپ نے سنا مفتی صاحب قبلہ کی زبانی, جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت سینہ بسینہ حافظ قرآن بنا دیتا ہے. ایک اللہ ہمارا حافظ قرآن بن جاتا ہے سینہ بسینہ. حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے آپ دیکھیں ماں کی دعا میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے. ارے ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے, ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ولی کی دعا میں وہ طاقت نہیں رکھی اولاد کے لیے جو ماں کی دعا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. اس لیے ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ, ماں باپ کے دل کو سکون پہنچاؤ. ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, ماں باپ نے بڑے دھکے کھائے ہیں ہمارے لیے, صرف اولاد کے لیے. خود بھوکا رہا ہے باپ لیکن اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رکھا ہے. خود عید کے موقع پہ نیا لباس باپ نے نہیں پہنا ہے. کبھی اپنے بچے کے ساتھ ایسا نہ کیا باپ نے کہ اپنی اولاد کو عید کے دن نیا لباس نہ پہنایا ہو. اب غور تو کریں, فاصلے کیے ہیں ماں باپ نے اولاد کے لیے, پریشانیاں اٹھائی ہیں ماں باپ کے لیے, ماں باپ نے اولاد کے لیے. اب اگر وہی باپ, اب اگر وہی ماں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئی اور وہی اولاد اس کو دھکا دے, بتاؤ اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے
कैसे रोकेंगे, उसकी आंखों से आंसू कैसे रोकेंगे। जो इमामों के पास जाके माँ बाप रोते हैं, जो इमामों के पास जाके बुजुर्ग रोते हैं, वो बुजुर्ग ऐसे ही नहीं रोते हैं। अरे दर्द जो होता है सीने का वो अपने आप कुछ नहीं जाता है, धक्के खाए हैं धक्के। और आपको पता है अगर अपना तकलीफ देता है तो तकलीफ ज्यादा होगी मुकाबिल गैर के। गैर धक्का देता है तो तकलीफ नहीं होती, जितना अपना धक्का देता है तो तकलीफ होती है। अगर अपने के दरवाजे से साइल को मना कर दिया जाए तो उसको बड़ी ठेस पहुंचती है, लेकिन जब गैर के दरवाजे से मिलता है तो वो इंसान गैर के दरवाजे से मिला हुआ धक्का इतना उसके लिए परेशान करने का सबब नहीं बनता जितना अपने के दर से धक्का मिलता है तो उसके लिए परेशानी का सबब बनता है। आप अंदाजा करें अगर बेटे के दर से बाप को धक्का मिले वो बाप कितना परेशान होगा। मैं अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। वो बाप कितना परेशान होगा, वो माँ कितनी परेशान होगी जिस माँ को औलाद के जरिए धक्के मिले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं कि माँ बाप को औलाद जवान होने के बाद बीवी की मोहब्बत में मारती है। आप नहीं देखते सोशल मीडिया में, बीवी की मोहब्बत में औलाद माँ बाप को मारती है। हालांकि मेरी एक बीवी है, अगर वो दुनिया से चली गई दूसरी मिल सकती है, दूसरी चली गई तीसरी मिल सकती है, लेकिन अगर माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम कभी दुनिया में आपको माँ बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं हो। दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे आपको। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह के लिए, माँ बाप की कदर करो। और माँ बाप से भी कहता हूँ औलाद की तरबियत करो, औलाद की तरबियत करो। अगर आपने औलाद की तरबियत सही तरीके से कर दी, औलाद की तरबियत आपने अच्छे तरीके से कर दी तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद कभी आपको परेशान नहीं करेगी, कभी आपकी औलाद आपको धक्का नहीं देगी, कभी आपकी औलाद आपको भूखा नहीं रखेगी। बस शर्त यह है कि आप अपनी औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत कर दें। जब औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से की जाती है, और कैसे तरबियत की जाती है औलाद की, जब औलाद की तरबियत बाप अच्छे तरीके से करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के दायरे में रह के करता है, और अपनी औलाद को बाप अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीख को पढ़ के सुनाता है, तो जब सहाबा की तारीख को बच्चा सुनता है तो उसके दिल में वही इश्क पैदा होता है, उसके दिल में वही रंग पैदा होता है। और फिर माँ बाप को औलाद कभी परेशान नहीं करती है, इसलिए कि उसने पढ़ा होता है सिद्दीक़ अकबर की तारीख को, उसने पढ़ा होता है सरकार उमर फारूक की तारीख को, उसने पढ़ा होता है उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में, उसने पढ़ा होता है सरकार मौला अली के बारे में। इसलिए कि माँ बाप है क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की शान को बयान फरमाया है, माँ बाप के मर्तबे को बयान फरमाया है, माँ बाप के मकाम को बयान फरमाया है। क्या फरमाया है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो चेहरा जो माँ बाप के निस्बत झुर्रियां पड़ जाती है, बेटे को शर्म आती है किसी के सामने कहते हुए, अगर बाप का लिबास पोसीदा है, बाप का लिबास फटा हुआ है और बेटा पैसे वाला बन गया तो पैसा वाला बेटा शर्माता है अपने समाज में कहते हुए, अपने डिपार्ट में कहते हुए कि ये गरीब जो आपको नजर आ रहा है ये मेरा बाप है, उसे शर्म आती है। मेरे अजीजे तुम माँ बाप को देख के शर्मा रहे हो, वो चेहरा जिस चेहरे पे आज झुर्रियां पड़ गई है, जिस हाथ में आज झुर्रियां पड़ गई है, आप देखें सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज मौजूद है कि बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। उसी चेहरे के बारे में अभी आपने मुझसे पेशतर समाअत किया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला अब जब बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता है। और एक हदीस पाक और है नबी करीम की, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटा और बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है, मोहब्बत की निगाह से देखती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे या बेटी को मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अंदाजा तो करो प्यारे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं बच्चे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल का सवाब का मतलब क्या हुआ, यानी उस हज का सवाब अता फरमाता है जो हज खुदा की बारगाह में कबूल हो जाता है। एक झलक माँ बाप को देखा है तुमने मोहब्बत की नजर से तो अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा रहा है। अंदाजा करो प्यारे, जो लोग अपने माँ बाप को आंखें निकाल के देखते हैं उनका भरोसा क़यामत हश्र क्या होगा, और अल्लाह की बारगाह में तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा, खुदा की बारगाह में तुमसे पूछा जाएगा। माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, माँ बाप के भी हुकूक है औलाद के ऊपर, तुमने अपने हुकूक को कितना अदा किया है। ऐ नौजवानों, इस मगरबी तहजीब के जंगल में गर्क न हो जाओ, फिर भी दुनिया
के एक्टरों को ना देखो कि वो लड़की की मोहब्बत में माँ को धक्का दे देते हैं, लड़की की मोहब्बत में बाप को घर से निकाल देते हैं। ये फिल्मी सीरियल ने आज दुनिया को बर्बाद कर दिया है। ये नौजवान इसी तरीके से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तुमने अपने माँ बाप को जाना नहीं है, माँ बाप की इज्जतों को सलाम करो और माँ बाप की इज्जत और इज्जत की हिफाजत करो, इसलिए कि अगर बाप की इज्जत सलामत है, अल्लाह की कसम तेरी इज्जत सलामत है। अगर बाप की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है। और आपने देखा नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, एक खबर बहुत जल्द पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। बहुत सारे इज्जतदार माँ बाप ऐसे हैं, जब तक दुनिया में जिंदा रहे पूरी जिंदगी उन्होंने दुनिया ने सलाम पेश किया है, दुनिया ने खराज पेश किया है, लेकिन उनकी औलाद ने दुनिया में आकर ऐसा काम कर दिया, ऐसा घिनौना काम अंजाम दे दिया, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, कोई गलत काम अंजाम दे दिया। काम तो बेटे ने किया है, काम तो गलत बेटी ने किया है, लेकिन गाना बाप को सुनना पड़ता है, शर्मसारी का सामना बाप को करना पड़ता है। वो बाप जो दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजार रहा था, बेटे ने गलत काम कर दिया, चौराहे पे बाप को जलील किया जा रहा है, चौराहे पे बाप को रुस्वा किया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी की औलाद निकम्मी निकल जाए, किसी की औलाद बुरी निकल जाए, तो बुरी औलाद का सबब आप किसी के बाप को ताना ना दे, आप किसी की माँ को ताना ना दे, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तज़रु वाज़रतुम विज़रा उख़रा, क़यामत वाले दिन कोई भी जान किसी दूसरी जान का बोझ ना उठाएगी। अगर बेटे ने गलती की है, सजावार बेटा होगा, बेटी ने गलती की है, सजावार बेटी होगी, लेकिन माँ बाप को ताना क्यों दे रहे हो? मैंने ऐसा भी माहौल दुनिया में देखा है, किसी बाप के बेटे ने गलत काम कर दिया, किसी बाप की बेटी ने गलत कार्य कर दी, तो बाप को ताना दिया जाता है, तूने तरबियत कैसी की है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी तरबियत का हक अदा कर दे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखे। नमाजों में औलाद के लिए दुआएं किया करे, नमाजों में औलाद के हक में दुआएं किया करे कि औलाद आपकी राह रास्त पे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से उम्मीद है, जब आपने औलाद की तरबियत कर दी और औलाद को अच्छे से पाल दिया, औलाद की अच्छी सी तरबियत कर दी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये औलाद मर तो जाएगी, लेकिन हमेशा यही कहती रहेगी, बुलबुल से बहरहाल नशे माहौल अगर अपने मुवाफिक नहीं तो क्या सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान, सुभान अल्लाह। दामन न छूटेगा, दामन मुस्तफा जब तक तुम्हारी औलाद के हाथों में रहेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारा खत्म कर देगी, सर पे बिठाए रहेगी, जब तक दामन मुस्तफा तुम्हारी औलाद के हाथों में रहेगा। और फिर मगरबी तहजीब में कितना भी बच्चा चला जाए, कितना भी आपका बच्चा उरूज हासिल कर ले, कितना भी दुनियावी एजुकेशन में आपका बच्चा आगे चला जाए, लेकिन कभी भी आपका बेटा आपके मकाम, आपके वक़ार को मजरूह नहीं होने देगा, कभी आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। इसलिए कि अपने बच्चों की जिंदगी में सबसे पहले आप हुजूर की सीरत को पिनहा कर दें अपने बच्चे की जिंदगी में। इसलिए कि आपने देखा, तोता लेके आते हो, कबूतर लेके आते हो, आखिरी बात करके बात को खत्म कर रहा हूँ, तोता लेके आते हो, कबूतर लेके आते हो, आप उसको पालते हैं, उससे बातें करते हैं और उसको पिंजरे में रखते हैं, सिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, एक साथ खोल नहीं देते, पिंजरे में रखते हैं, उसको तरबियत करते हैं उसकी। लेकिन जब आपने तोते की तरबियत कर दी अच्छे से, आपने कबूतर की तरबियत कर दी अच्छे से, फिर आप उसको पिंजरे से बाहर कर देते। अब जो आपका तरबियत याफ्ता है वो उड़ता तो है आसमान में, जाता है कभी मेरी छत पे, कभी आपकी छत पे, कभी किसी की छत पे जाता तो है, लेकिन सूरज ढलने से पहले वो आप ही की छत पे आ जाता है, आप ही की छत पे आता है। क्यों? इसलिए कि आपने उसकी तरबियत की, वो पहचान गया है आपको, वो जान गया है आपको, कहीं भी जाए वो, लेकिन वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा। इसी तरीके से बिला तशरीह हो बिला तमसील औलाद को सीरत मुस्तफा पढ़ा दो और उसकी जिंदगी में मुंतकिल कर दो, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी में रहे, चाहे वो कॉलेज में रहे, चाहे वो दुनियादार के साथ रहे, चाहे वो बिजनेसमैन के साथ में रहे, किसी के भी साथ में रहे, वो जान गया है कि माँ बाप क्या है, वो जान गया है सरकार ने क्या फरमाया है माँ के बारे में, वो जान गया है नबी ने क्या फरमाया है बाप के बारे में, किसी के भी साथ में वो रहेगा। आपने तरबियत कर दी है, वो सोहबत उसके ऊपर रंग नहीं ला सकती, वो कभी भी आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। तरबियत आपने कर दी, बस पहले अपनी
اولاد کو نبی کریم کی محبت سکھاؤ. سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ. یہی سرکار نے فرمایا. سب سے پہلے حضور نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کی الفت سکھاؤ. اور نبی کی جب محبت آپ کی اولاد نے سیکھ لی, آپ کی اولاد نے نبی کی محبت سیکھ لی, تو آپ کی اولاد دنیا میں رہے گی, دنیا میں رہے گی, وہ یہی کہتی رہے گی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اولاد کی تربیت کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے, جن کے والدین دنیا سے